Hello everyone. Good afternoon everyone. Are you able to hear me? Good afternoon everyone. How are you all? Good afternoon. Chalo, join fast. Please spread the message. Join fast. We will revise yesterday's part and then we are going to start with Indian Contract Act Special Contracts का part. Yesterday we have started with bailment and pledge. So आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, bailment का आगे का part and pledge. So everyone, come on, join. So here we are, bailment and pledge. Yes. दो मिनट में स्टार्ट करते हैं. Yes. So yesterday we had discussed about bailment, which is defined under section 148 of Indian Contract Act. Okay. तो ये वाला जो part है bailment का, bailment section 148, it comes under the heading special contracts, right? Special contracts के अंदर आता है ये. तो कल हमने एक देख लिया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872, ये एक्ट आपने आपके फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट? बट you have not studied it completely because contract act is divided into two parts. एक है general principles and the second part is special contracts. So आपका जो first part है general principles, that is already covered in your CA foundation exam. अभी हम लोग concentrate करने वाले हैं on the second part, that is special contracts, right? Special contracts. So special contracts में the first one that we are studying, we have already started with it, is a contract of bailment. Bailment. यहाँ पे देखना कल के एग्जाम्पल्स एक बार जल्दी से याद कर लेना. अलाइड लॉज का पार्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, आपका पैटर्न कैसा है एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड इन येस्टरडेज क्लास. आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, बेलमेंट का आगे का पार्ट. तो उसके पहले आई वांट यू ऑल टू क्विकली रिवाइज, गो थ्रू येस्टरडेज पार्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड टुडेज पार्ट बेटर. ओके. सो बेलमेंट के दो टाइप्स देखे थे हमने, एक है ग्रेचुटियस बेलमेंट, दूसरा है नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट. उसमें एग्जाम्पल्स देखे. सो लेट्स क्विकली सी व्हाट इज एग्जाम्पल फॉर ग्रेचुटियस बेलमेंट. एक पीस ऑफ क्लॉथ जो मेरे पास है वो मैं टेलर को स्टिचिंग के लिए दे देती हूँ. He is going to make a dress out of it and return it back to me. This is nothing but an example of bailment. अगर इस ड्रेस के मुझे कुछ पैसे पे करने हैं, स्टिचिंग के चार्जेस if I pay to the tailor, it will be an example of gratuitous bailment. That is, sorry, it will be an example of non-gratuitous bailment. Look at the screen everyone. Non-gratuitous, that is with consideration. And if I take the piece of cloth from Jai Hind or a showroom like Silai, और उन्हीं के टेलर के पास मैं स्टिचिंग के लिए देती हूँ, and the tailor says as you have taken the piece of cloth from us, you need not pay us the stitching charges, then it will be called as a gratuitous bailment, that is विदाउट कंसिडरेशन. मतलब यहाँ पे मैं पीस ऑफ क्लॉथ तो दे रही हूँ, उसके बदले में मुझे ड्रेस मिल रहा है इन रिटर्न, बट आई डोंट हैव टू पे एनी कंसिडरेशन.
So as there is no consideration, it is called as a gratuitous bailment. So इस तरह से bailment के दो types होते हैं, gratuitous and non-gratuitous. And you can remember one example of giving the piece of cloth to a tailor. Next comes the names of parties. So इस contract of bailment पे दो parties involved हैं, एक को हम बेलर कहेंगे और दूसरे को हम बेली कहते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड हु इज अ बेलर एंड हु इज अ बेली. बेलर कल हमने देख लिया है ऑलरेडी ये पार्ट. सो बेलर इज अ पर्सन हु ओन्स द गुड्स एंड हु इज डिलीवरिंग द गुड्स. सो इन दिस एग्जाम्पल विच आई गेव यू, आई एम अ बेलर बिकॉज आई एम गिविंग द पीस ऑफ क्लॉथ टू द टेलर. एंड जो टेलर है, जो उन कपड़ों को स्टिच करने वाला है, ही इज अ बेली. सो बेली सिर्फ उस गुड्स का थोड़ी दिनों के लिए पोजेशन लेता है. ही यूजेस हिज स्किल्स, ही कन्वर्ट्स दैट पीस ऑफ क्लॉथ इनटू अ नाइस ड्रेस एंड ही रिटर्न्स इट बैक. इन रिटर्न ही गेट्स सम कंसिडरेशन. सो बेली इज अ पर्सन टू whom the goods are delivered. Next important point that we saw yesterday was purpose. जब हम लोग goods bail करते हैं, we are doing bailment of goods, तो कुछ purpose होता है. Okay, purpose can be I want to convert the cloth into a dress. Purpose can be कि मुझे उस कार का सर्विसिंग करना है, इसीलिए मैंने उसको डीलर के पास दिया है, एक्सेट्रा. So there is definitely some purpose behind executing this contract of bailment. बिना purpose तो मैं मेरे goods किसी और को नहीं देने वाली हूँ, right? So there is always a purpose behind a contract of bailment. Next essential element that we had discussed yesterday was possession. What is this word? What does this word mean? सो possession का मतलब होता है डिलीवरी, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ फिजिकली गुड्स को ट्रांसफर करना. सो यहाँ पे दो चीज़ें आती है सामने, दैट इज possession एंड ओनरशिप. जब मैं एग्जाम्पल लेना कि जब मैं ये फ़ोन किसी को बेच देती हूँ, सेल करती हूँ, तो इन केस ऑफ सेल ओनरशिप एज वेल एज possession गेट्स ट्रांसफर्ड. बट व्हेन आई एम डूइंग बेलमेंट, ओके, जब मैं बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, जब मैं पीस ऑफ क्लॉथ दे रही हूँ या जब मैं मेरी कार सर्विसिंग के लिए दे रही हूँ, तब मैं उस पर्टिकुलर क्लॉथ या उस पर्टिकुलर कार की ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं करती हूँ. आई ओनली ट्रांसफ़र द possession ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स. सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म, अनदर इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. सो बेलमेंट में आपको याद रखना है बच्चों कि सिर्फ possession ही ट्रांसफर होता है. सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है? possession is getting transferred from one person to another person. Yes, this is what we have already done yesterday. This is something which we've already discussed yesterday. So any questions in this, or we should move ahead with our new part? Yes. Please put your comments in the chat box so that we will understand if you have any doubts. Yes, any doubts? You can put your comments in the chat box. Okay, fine. Then let us see what are the different forms. So what are the different forms of bailment? Certain popular forms of bailment. Popular forms of bailment. See, delivery of goods. हम लोग statement को divide कर लेते हैं and then we'll try to understand each and every part. Okay. So when there is delivery of goods by one person to another to be held for the bailer's use, it is a form of bailment. इसका मतलब क्या होता है? Delivery of goods from one person to another to be held for bailers use is called as bailment. Let us take an example to understand this particular form of bailment. Example लेते हैं, अगर
I am a dealer in rice. Okay, let's take an example. I am a dealer in rice. मेरे पास मेरे फार्म में बहुत ज़्यादा राइस है जिसको मैं फर्दर बेचना चाहती हूँ, बट इस राइस को स्टोर करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है. सो आई गेट इन टच विथ मिस्टर एक्स. आई गेट इन टच विथ मिस्टर एक्स हु इज अ गोडाउन कीपर. दैट इज इसके पास बहुत बड़ा गोडाउन है जहां पे हम इस राइस को स्टोर कर सकते हैं. सो मिस्टर एक्स एंड आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरे पास जो राइस है उसको मैं उनके गोडाउन में स्टोर करूंगी एंड वेन एवर रिक्वायर्ड आई विल टेक इट बैक एंड सेल इट फर्दर. ये जो एग्जाम्पल है वेयर आई एम जस्ट गिविंग द possession ऑफ राइस to the godown keeper, where he is just going to store and then later on he will again deliver it to me whenever I need and I will sell it further. This is a contract of bailment between me and the godown keeper. So try to understand. See यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास जो goods है यानी कि rice in this case, I am transferring it to whom? To this godown keeper Mr. X. सो मिस्टर एक्स उन गुड्स को उनके पास रखने वाला है. सो देर इज अ पर्पज बिहाइंड दिस, राइट? द पर्पज इज दैट आई एम नॉट हैविंग अ स्टोरेज फैसिलिटी एंड आई वांट टू स्टोर इट समवेयर सेफली. सो मेरा पर्पज है कि मुझे राइस को स्टोर करना है, इसीलिए मैंने उस गोडाउन कीपर को दे दिया है. सो ही विल हेल्प मी टू स्टोर. इन रिटर्न आई एम गोइंग टू पे हिम सम कंसिडरेशन. मैं उसके कुछ चार्जेस जो है गोडाउन चार्जेस वो उसको मैं पे करने वाली हूँ. ठीक है. सो ये जो गोडाउन कीपर है ये हो जाएगा बेली और मैं हूँ बेलर. सो मेरा जब भी पर्पस सर्व हो जाएगा मैं उसको गुड्स वापस डिमांड करने वाली हूँ. गुड्स विल बी रिटर्न्ड बैक टू मी एंड देन आई एम गोइंग टू फर्दर सेल माई गुड्स, दैट इज राइस. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ पीरियड के लिए मैं मेरे गुड्स उनके गोडाउन में रख रही हूँ. So this is one form of bailment. Let's go to the next form, the second form of bailment, and that is goods given to a friend for his own use without any charges. Let's take example for this. I have a reference book to be read on Indian Contract Act with me. Okay, I have a good reference book which will give you a in-depth knowledge about Indian Contract Act. इस बुक को मैं मेरे फ्रेंड को दे देती हूँ. She wants to read more about Indian Contract Act and so I give the reference book to her. मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट. आई एम नॉट सेलिंग इट. ओके, रिमेंबर आई एम नॉट सेलिंग द बुक. मैं ऐसे ही कुछ दिनों के लिए उसको वो बुक पढ़ने के लिए दे रही हूँ. सो शी इज गोइंग टू रीड एंड शी इज गोइंग टू रिटर्न इट बैक टू मी. ये क्या हो जाता है? So when you give your books to someone else to read, to understand, and they're going to return back the book to you, this is an example of contract of bailment. क्योंकि यहाँ पे भी सब essential elements of bailment आ जाते हैं. So one person delivering the goods to another person for a particular purpose and then the person returns back the book. So सारे के सारे essential elements of bailment यहाँ पे भी present है. Therefore, goods given to a friend for his own use will also be covered in the definition of bailment. Yes, Khushi, Devika, yes, you are saying no for what, dear? Khushi and Devika. I can see some messages in the chat box. Yes. Shall we continue with the third form of bailment? Third form of bailment देखना है. First and second point is clear. Delivery of goods by one person to another to be held for bailer's use. Second one is goods given to a friend for his own use without any charges. Example, book. Devika is saying no doubts. Okay.
फाइन. सो ये जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, आई गिविंग अ बुक टू अ फ्रेंड. अनदर एग्जाम्पल कैन बी आप लोग आपके कॉलेज के लाइब्रेरी से बुक्स इशू करते हो. ये क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. यू आर इशूइंग बुक्स फ्रॉम योर लाइब्रेरी फॉर रेफरेंस. You are reading the book and you are returning it back. So even this becomes an example of what? Bailment. Next, third form of bailment. Third form of bailment क्या है? Hiring of goods. What do you mean by hiring of goods? पुणे में, if you all know, शनिवार वाड़ा. वंस अपॉन अ टाइम शनिवार वाड़ा के यहाँ पे साइकिल्स रेंट पे मिलते थे. साइकिल्स ऑन रेंट. अभी तो ज़माना बदल गया है. नाउ इट्स नो मोर साइकिल्स ऑन रेंट, बट यू गेट ओला, उबर, जूम कार्स वगैरह. आपको कार्स रेंट पे मिल जाते हैं. यू कैन ड्राइव इट ऑन योर ओन एंड यू कैन गो टू योर डेस्टिनेशन, राइट. सो वैसा ही कॉन्सेप्ट था साइकिल्स ऑन रेंट, वेयर यू कैन गो एंड यू कैन टेक अ साइकिल ऑन रेंट. ओके, नॉमिनल कुछ चार्जेस होते हैं 1 आवर के, 2 आवर्स के. यू टेक द साइकिल एंड यू ड्राइव इट एंड यू रिटर्न इट बैक. व्हाट इज दिस? साइकिल्स का ले लो, या अभी का करंट एग्जाम्पल कि आप लोग कार्स रेंट पे ले सकते हो. यू कैन टेक अ कार ऑन रेंट. यू कैन ट्रैवल टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. लेट्स सी दैट यू वांट टू गो टू महाबलेश्वर और आपके पास कार नहीं है, लेकिन आपको ड्राइविंग आती है. आप रेंट पे कार ले सकते हो. यू कैन ड्राइव टू महाबलेश्वर, यू कैन एंजॉय योर ट्रिप, कम बैक एंड रिटर्न द कार. इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको वो कार खरीदने की तो ज़रूरत नहीं है. उसका जो मेंटेनेंस वगैरह है वो भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ रेंटल चार्जेस पे करने हैं. यू एंजॉय योर ट्रिप एंड यू कम बैक. सो ऐसा भी टाइप का बिजनेस है, रेंटिंग ऑफ कार्स, रेंटिंग ऑफ साइकिल्स. So this is also an example of contract of bailment, क्योंकि हमारे सब essential elements of contract of bailment इसमें भी हमें present दिखते हैं. Okay, so just take 1 minute and quickly recall what are the essential elements of contract of bailment and whether all those points are getting covered in our hiring of goods के contract में. Okay, I am going to take you back to the essential elements of bailment. See over here on the screen, you can see there are 5 essential elements which are written. So एक बार quickly renting of goods के इसमें देखना contract है क्या ये? Yes, all the points are getting satisfied. Delivery of goods, yes. car goods के definition में आता है and car is being delivered to you, that is उस car का possession आपके पास आ जाता है. Purpose, आपका purpose is very well defined. That you want to go to महाबलेश्वर, आपका जैसे ही वो पर्पस सर्व हो जाता है, it will be returned back. Possession, yes, only possession. Okay, उस एक ट्रिप के लिए वो कार आपके पास है. उसके बाद आपको वो रिटर्न करनी है. You cannot keep it back with yourself. Okay, so if you have specifically mentioned कि आप 2 दिन के लिए कार रेंट पे ले रहे हो, तो आप सिर्फ 2 दिन के लिए ले सकते हो. After 2 days, you are immediately expected to return it back. Okay, so the last point is return of goods. Yes, you are going to return the car. So all the essential elements of a contract of bailment are getting satisfied in the third form also. Okay, so having said that, let's move to the next part, that is delivering goods to the creditor to serve as security, for a loan. Delivering goods to creditor. Okay, so let's see an example for this. What is meant by delivering goods to a creditor to serve as security for a loan? So यहाँ पे हमें example लेना है एक debtor का और creditor का. Debtor and creditor क्या होता है इस रिलेशनशिप में? डेटर क्रेडिटर के रिलेशनशिप में, कैन एनीवन आंसर इन द चैट बॉक्स? हु कैन टेल मी हु इज अ क्रेडिटर? कौन किसको लोन दे रहा है? चलो और सिंपल मैं कर देती हूँ. कैन यू टेल मी वेदर डेटर इज गिविंग द लोन और क्रेडिटर इज गिविंग द लोन? हु इज गिविंग लोन? वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स.
who is giving loan? डेटर लोन दे रहा है या क्रेडिटर लोन दे रहा है? चलो बोलो. Fine. Yes, Devika, creditor is giving loan. Creditor. Yes, good. So creditor is the one who is giving the loan. Creditor is the one who is giving the loan. उसके बदले में देखना, कोई भी जब आपको लोन दे रहा है, कोई भी, चाहे वो एक बैंक हो या कोई भी एक पर्सन हो, जब भी वो पर्सन आपको लोन दे रहा है, he definitely expects you to give something as security. Something as security. तो तुम क्या दे सकते हो as security? You can give anything, like you can give an immovable property, you can give some movable property, you can give goods as security. Okay, so it must have some value, and against those goods he will be giving you loan. So यहाँ पे ऐसा ही एग्जाम्पल लेना कि डेटर ने क्या किया है, कुछ गुड्स को एज सिक्योरिटी दे दिया है, एंड इन रिटर्न द क्रेडिटर हैज गिवन लोन. सो अगर आप लोन को अच्छे से रीपे करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ देर इज अ डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन, if there is a default in the repayment of loan, then this creditor has a right, he has a right, creditor has a right. क्या right है? Creditor has a right that जो goods उसके पास है उस goods को वो बेच देगा, and whatever money is recovered from selling those goods, he will try to set off his loan amount from that. So यहाँ पे जो डेटर क्रेडिटर में ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहाँ पे इफ वी कंसिडर दैट डेटर इज गिविंग सम गुड्स एज सिक्योरिटी टू क्रेडिटर, then this will also be an example of contract of bailment. Even this is an example, or this is a form of contract of bailment. Yes, even this is an example of contract of bailment. आगे जाके हम लोग एक और एक कॉन्सेप्ट देखने वाले इसी चैप्टर में इमीडिएटली आफ्टर बेलमेंट, एंड दैट इज प्लेज. तो ये जो अभी का हम लोग फॉर्म देख रहे हैं जहां पे डेटर कुछ गुड्स देता है टू क्रेडिटर एंड द पर्पस इज सिक्योरिटी. ओके, पर्पस इज सिक्योरिटी. हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए गुड्स दे रहे हैं टू क्रेडिटर, then it specifically becomes a pledge. Okay, it specifically becomes a pledge. तो अभी आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अभी सिर्फ ये एग्जांपल बेलमेंट के अंदर याद रखना. when we come to contracts of pledge, तब हम लोग इस पॉइंट को वापस इन डिटेल देखने वाले हैं. then we will try to understand what is difference between bailment and pledge. Fine. So this is also one of the types. That's it. That is what you are supposed to remember as of now. Later when we talk about pledge, we will discuss it in detail. Yes. Let's see the last one. That's the fifth type. Fifth type देखते हैं. Fifth type of bailment. Delivering goods for repair with or without remuneration. Delivering goods for repair. मोबाइल का देख लो एग्जाम्पल, लैपटॉप का एग्जाम्पल ले लो. जब मैं मेरा मोबाइल या लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए देती हूँ बिकॉज देर इज सम प्रॉब्लम इन दैट, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. मेरा मोबाइल अगर खराब हो जाता है या मेरा लैपटॉप इज नॉट वर्किंग एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, तो जो भी रिपेयरिंग वाला है हम उस रिपेयरिंग वाले को दे देते हैं. ही इज गोइंग टू रिपेयर इट एंड रिटर्न इट बैक. उसके बदले में हम क्या देने वाले हैं? वी आर गोइंग टू पे हिम हिज चार्जेस, राइट. सो व्हेन वी आर रिपेयरिंग वी नो दिस फैक्ट कि उसके कुछ रिपेयरिंग के चार्जेस रहेंगे और हमें वो पे करने हैं, राइट. सो दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट. सो इस तरह से बेलमेंट हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है. ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट्स करते हैं, बट मे बी
Before studying this concept, you were not aware that this is termed as a contract of bailment. But you and me, each one of us were doing such type of contracts. Okay, so now you can remember that this is called as a contract of bailment. Fine, one more last point is remaining over here. Last point एक बार देख लेते हैं. Delivering goods for carriage. Carriage मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन के लिए. मुझे कुछ गुड्स है जो पुणे से दिल्ली भेजने हैं. ओके, मुझे वो गुड्स है, मेरे पास आई हैव अ फार्म ऑफ राइस, अ राइस फार्म, एंड आई वांट टू डिलीवर, आई वांट टू ट्रांसफर दिस राइस फ्रॉम पुणे टू दिल्ली. ओके, अब इन बिटवीन एक कैरियर आ जाएगा बीच में, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्रोडक्शन करती हूँ, मेरे पास सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ राइस. हाउ टू फर्दर ट्रांसफर इट, उसका मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है. सो आई गेट इन टच विद अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी एंड आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम कि ये राइस है, आपको यहाँ से दिल्ली तक डिलीवर करना है. सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, ये जो कैरियर है, जो कैरी करने वाला है गुड्स को फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, विल बी कॉल्ड एज अ कैरियर. सो डिलीवरी ऑफ गुड्स for the purpose of transportation is also an example of contract of bailment, right? So हमने 6 अलग अलग एग्जाम्पल्स देख लिए हैं. कॉलेज के लाइब्रेरी से लेके शनिवार वाड़ा पे जो साइकिल्स रेंट पे मिलते थे, सब एग्जाम्पल्स देख लिए हैं. एंड ऑल दीज आर नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ bailment, contracts of bailment. Okay, fine everyone, is this clear? What are the different forms? Different forms clear हो गए सब. 6 अलग अलग examples, we have seen 6 different examples. Fine, let's move ahead. Let's go ahead with the next part. नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ बेलमेंट्स. तो ये तो हमने ऑलरेडी कल देख लिया है, एक बार वापस यहाँ पे देख लेते हैं. बेलमेंट, बेलमेंट के 2 टाइप्स है. कौन से 2 टाइप्स है? कम ऑन, बाय नाउ इट शुड बी ओवर हियर. बेलमेंट के 2 टाइप्स होते हैं. एक है ग्रेचुटियस बेलमेंट, दूसरा है नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट. ग्रेचुटियस, नॉन ग्रेचुटियस. मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेचुटी. ग्रेचुटी इस वर्ड का मीनिंग ही होता है free of charge, that is without any consideration. Okay, that is without consideration. Next type is non-gratuitous bailment. Non-gratuitous is exactly opposite ऑफ ग्रेचुटियस. तो आप दोनों में से किसी भी एक टर्म का मीनिंग याद कर लो, दूसरा इज गोइंग टू बी द रिवर्स ऑफ दैट. सो इफ यू रिमेंबर दैट ग्रेचुटियस इज विदाउट कंसिडरेशन, नॉन ग्रेचुटियस विल बी विथ कंसिडरेशन. इट विल बी विथ कंसिडरेशन. It will be with consideration. So we have already seen examples for this. So you can refer to the same example of tailor who charges you rupees 3000 as stitching charges. Sorry, I am supposed to write this example over here. तो यहाँ पे देखना, नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट में आपने टेलर के पास कपड़े सिलवाने के लिए दिए हैं एंड ही इज चार्जिंग यू रुपीज 3000 फॉर दैट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रेचुटियस. ग्रेचुटियस के लिए क्या, आपने गुड्स लिए हैं, मतलब कि पीस ऑफ क्लॉथ सिलाई से लिया एंड वही के टेलर के पास सिलवाने के लिए दिया एंड ही इज नॉट चार्जिंग यू, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको स्टिच करके देने वाला है. ये हो जाएगा ग्रेचुटियस बेलमेंट. ओके, सिंपल, वेरी सिंपल. बेलमेंट एंड बेलमेंट के 2 टाइप्स है ना, सिंपल है या नहीं? यस.
ओके चलो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि बेलर बेलमेंट जो है उसमें दो पार्टीज होते हैं, बेलर है, बेली है। अब हमें देखना है कि बेलर के क्या राइट्स है, ड्यूटीज है, बेली के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज है। सो लेट्स स्टार्ट अप फर्स्ट विथ बेलर। बेलर कौन होता है? सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट बेलर कौन होता है, ओनली देन यू कैन डिस्कस अबाउट हिज ड्यूटीज। सो बेलर के लिए सिंपल आप एक टर्म याद रखो, बेलर के लिए एक टर्म याद रखो कि बेलर कौन होता है? वो गुड्स का ओनर होता है। बेलर इज नथिंग बट ओनर ऑफ द गुड्स। या तो फिर दूसरा डेफिनेशन क्या है उसका, प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखेंगे तो बेलर इज अ पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स। ही इज अ पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स टू द बेली। सो लेट्स सी द ड्यूटीज। सेक्शन 150 से स्टार्ट होता है, सेक्शन नंबर 150 से स्टार्ट होता है। सेक्शन नंबर 148 में हमने डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट देखा है, डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन नंबर 150 पे, 150। ओके सो फर्स्ट ड्यूटी क्या है? फर्स्ट ड्यूटी क्या है? सबसे पहले अगर आप कार सर्विसिंग के लिए दे रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कर रहे हो विद दैट डीलर, आपकी ड्यूटी है एज अ बेलर कि आपकी कार में जो भी फॉल्ट्स है, एग्जाम्पल आपके गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है, आपका गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, it is your duty as a baler that you inform this fact to the bailee at the time of entering into a contract. See what will happen if you do not disclose the faults, he will not be in a position to deliver you the goods in the right form. उसको पता ही नहीं है कि आपके गाड़ी का ब्रेक फेल है, so he will not look into that matter. उसको लगेगा नॉर्मल सर्विसिंग के लिए गाड़ी आई है, he'll just do normal servicing and return it back to you. So it is your duty that you disclose all the faults in your goods. आप अगर कपड़े सिलवाने के लिए डाल रहे हो, उस कपड़ों में मे बी उसको कुछ कलर लग गया है या एक पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ दैट ड्रेस इज हैविंग अ होल इन इट, ये फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना है। तो कुछ भी हो, कुछ भी फॉल्स हो, क्योंकि बाद में आप उसका ब्लेम उस बेली पे नहीं डाल सकते हो। सो इट इज़ योर ड्यूटी, ओके, इट इज़ योर ड्यूटी, ये आपका ऑब्लिगेशन है कि आप जो भी फॉल्स है उसको बस डिस्क्लोज करो टू द बेली, सो दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट to your bailey and you have to disclose all the faults in the goods that you have bailed, in the goods that you have bailed. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैम ग्रेचुइटियस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुइटियस, ऐसे दो है, तो क्या हमें ये ड्यूटी है टू डिस्क्लोज इन बोथ द टाइप्स ऑफ बेलमेंट्स? द आंसर इज येस, चाहे वो ग्रेचुइटियस बेलमेंट हो या नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट हो, दोनों भी टाइप्स में इट इज योर ड्यूटी to disclose whatever faults are there in the goods bailed. Okay, कोई भी हो, gratuitous हो या non gratuitous हो, fine. So in both the cases it is your duty to disclose. So different examples are given over here. Right now to understand we have continued with the same example which we had discussed before. नेक्स्ट ड्यूटी, सो एक ही ड्यूटी पे हम लोग नहीं रुकने वाले, काफी सारे ड्यूटीज होते हैं बेलर के। सो द सेकेंड ड्यूटी इज टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस, टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा होता है, ओके, गाड़ी सर्विसिंग के लिए डाली, गाड़ी की सर्विसिंग का जो भी बिल आएगा, इट इज योर ड्यूटी दैट यू पे इट बैक, राइट, इट इज योर ड्यूटी दैट यू पे। स्टिचिंग के जो भी चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने हैं। सो एक बार काम हो गया है, उसके बाद बेलर वहाँ पे निगोशिएशन नहीं कर सकता है, और ही कैन नॉट से दैट आई विल नॉट पे, ओके, ही विल नॉट से दैट आई विल नॉट पे द प्राइस। इट इज हिज ड्यूटी कि आपने गुड्स बेल किए थे, आपका पर्पस अभी सर्व हो चुका है, तो यू मस्ट डेफिनेटली पे द प्राइस फॉर दैट, यू मस्ट डेफिनेटली पे द प्राइस फॉर दैट। व्हाट डू यू थिंक, अगर आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए देते हो और आप सर्विसिंग का जो भी प्राइस आ जाता है, आपका जो भी बिल है, अगर आप उस बिल के अमाउंट को पे करने से रिफ्यूज कर देते हो, डू यू थिंक दैट द बेली इज गोइंग टू रिटर्न बैक द गुड्स?
आइडियली यू पुट योर सेल्फ इन टू द शूज ऑफ बेली, आप खुद को बेली के जगह पे रखो एंड देन यू थिंक इफ यू आर द बेली एंड द बेलर सेज दैट नो आई विल नॉट पे द प्राइस, आपको जो करना है कर लो, तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? विल यू रिटर्न बैक द गुड्स? विल यू रिटर्न बैक द गुड्स? यस, दोज हु आर लिसनिंग टू मी प्लीज आंसर माई क्वेश्चन. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने? क्वेश्चन इज कि अगर आप खुद को बेली समझते हो और आपके पास ऐसे बेलर ने गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी है, सर्विसिंग के जो भी चार्जेस आते हैं, अगर बेलर सीधा मना कर देता है टू पे द बिल अमाउंट, व्हाट विल यू डू इन सच अ सिचुएशन? आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? व्हाट विल यू डू इन सच अ सिचुएशन? Will you return? Will you return the goods? Will you return the goods? Will you return? Yes, तो यहाँ पे देखना जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो डेफिनेटली बेली जो है ना वो उस गुड्स को रिटेन करने वाला है, ना कि रिटर्न. ओके, मैं क्या कह रही हूँ? बेली उस गुड्स को रिटेन करेगा एंड नॉट रिटर्न. ही इज नॉट गोइंग टू रिटर्न इट बट ही इज गोइंग टू रिटेन द गुड्स. सो यहाँ पे वही कहा गया है कि जो भी एक्सपेंसेस है वो बेलर की ड्यूटी है. मेलविन, देविका. ओके, सो वी विल नॉट रिटर्न इट, राइट? डेफिनेटली. क्यों रिटर्न करना है? अगर बेलर पैसे नहीं पे कर रहा है वी विल नॉट रिटर्न. ओके, वेरी सिंपल सी, मतलब ये तो लॉ ने बताने की भी जरूरत नहीं, ये तो हमें पता है कि बेली, एज अ बेली व्हाट वी आर सपोज टू डू, राइट? सो एज अ बेलर इट इज अ ड्यूटी दैट यू पे द एक्सपेंसेस. अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, गाड़ी सर्विसिंग करते वक्त पता चला कि एक पर्टिकुलर पार्ट पूरी तरह से खराब हो चुका है और उसको चेंज करना पड़ेगा, एंड ही यूजेस हिज ओन स्किल एंड ही गेट्स अ न्यू पार्ट फॉर योर कार एंड ही फिट्स इट. इसके जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी आपको पे करने, इट इज योर ड्यूटी, राइट? सो व्हेन आई से एक्सपेंसेस, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं. बेलर इज लायबल टू पे extraordinary expenses also which are incurred by the bailey, नेक्स्ट ड्यूटी देखते हैं. चलो नेक्स्ट ड्यूटी देखते हैं. थर्ड ड्यूटी क्या है बेलर की? चलो देखते हैं बेलर के क्या ड्यूटीज है. थर्ड वन, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन. What is the meaning of the word indemnify? Okay, so let us see what is the meaning of the word indemnify. Indemnify का मतलब क्या होता है? Indemnify, okay, देखना हमेशा याद रखना, indemnify ये वर्ड जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो लॉस ये वर्ड उसके साथ आ ही जाता है. मतलब unless and until there is a loss, the word indemnify has no meaning at all. Okay, so indemnify means to make good the loss. It means to make good the loss. It means to make good the loss. So duty of bailor to indemnify the bailey for premature termination. Example, गोडाउन वाला एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं. गोडाउन वाला एग्जाम्पल, मैंने गोडाउन में गुड्स दिए हैं, राइस दिया है रखने के लिए फॉर 6 months. आई हैव टोल्ड हिम 6 महीने आपको रखना है, उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक बैक द राइस. 6 महीने का हमारा रेंट जो है वो डिसाइड हो चुका है, पर मंथ एग्जाम्पल 1000 रुपीज. एंड इस तरह से बेलर हैड promised to pay Bailey a rent of ₹6,000 for 6 months. 6 महीने के लिए वो 6,000 रुपये पे करने वाला था. ओके, वी आर कंसिडरिंग 1000 रुपीज पर मंथ एज द रेंटल चार्जेस. तो इस तरह से बेलर ने क्या किया है? बेलर ने उसका Bailor has given rice to Bailey. Okay,
उसके गोडाउन में रखने के लिए। अब होता क्या है, बेलर को गुड्स लग रहे हैं, उसके पास एक बहुत बड़ी ऑर्डर आ गई है वेयर ही वांट्स टू सेल, ही वांट्स टू सप्लाई हिज राइस। तो वो उसके पहले ही 6 महीने के पहले ही, 4 महीने ख़त्म होने के बाद ही वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है, वो 6 महीने के लिए नहीं, राइट, वो 4 महीने के बाद ही राइस को कहता है कि मुझे वापस रिटर्न कर दो, रिटर्न बैक द राइस विच आई हैड केप्ट इन योर गोडाउन। अब यहाँ पे मुझे बोलना ये क्या हो रहा है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो रहा है। प्री मैच्योर टर्मिनेशन दैट इज जो डिसाइडेड पीरियड था, प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, उसके काफी पहले ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हो, उसको टर्मिनेट कर देते हो, उसको एंड कर देते हो। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस premature termination? The contract is getting cancelled even before the decided timing. तो 6 महीने के पहले ही, 4 महीने के बाद ही उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है, बेली को लॉस हो रहा है ना। बेली को अगर आप ऐसा करोगे तो बेली के साथ क्या हो जाएगा, बेली के साथ तो लॉस हो जाएगा, राइट, बेली के साथ लॉस हो जाएगा, क्योंकि बेली के दिमाग में था कि 6 महीने के लिए आप यूज कर रहे हो, आप 6 महीने का रेंट पे करने वाले थे। अब उसको अचानक से 2 महीने के लिए अगर कोई मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज 2 महीने के लिए उसको लॉस है। Therefore, बेली इज गोइंग टू आस्क फॉर दिस लॉस। ये जो 2000 रुपए का उसको लॉस हो रहा है, उस लॉस को भी वो क्लेम करने वाला है फ्रॉम द बेलर। वो बेलर को क्या बोलेगा, आपको जो करना है करो, आपको गुड्स को 4 महीने के बाद ही लेके जाना है, लेके जाओ, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था टू पे रेंट फॉर 6 months, यू शुड फॉलो दैट, अदरवाइज इट इज अ लॉस फॉर मी। सो यहाँ पे अपना पॉइंट क्या कहता है कि हाँ, बेलर की भी ड्यूटी है टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर सच प्री मैच्योर टर्मिनेशन। सो ऐसे प्री मैच्योर टर्मिनेशन की वजह से जितना भी अमाउंट का लॉस होगा, उतना अमाउंट बेलर ने बेली को पे करना चाहिए। ओके, सो इन दिस वेरी सिंपल एग्जांपल दैट आई हैव गिवन यू, 2000 क्लियर कट दिख रहा है कि 2000 का बिना वजह बेली को नुकसान हो जाएगा। तो बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो 2000 रुपये क्या करें, 2000 रुपये क्या करें, पे करें, मतलब ही इंडेमनिफाई करें। ओके, सो आई होप द मीनिंग ऑफ व्हाट इज प्री मैच्योर टर्मिनेशन इज क्लियर। प्री मैच्योर टर्मिनेशन क्या होता है, एंड इंडेमनिफाई ये एक लीगल टर्म है, इसका मीनिंग क्या है, राइट। सो इंडेमनिफाई मीन्स टू मेक गुड द लॉस। जितनी अमाउंट का लॉस हुआ है उतना लॉस बेलर ने बेली को पे करना है। दैट इज व्हाट इज इंडेमनिफाई, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। लास्ट पॉइंट फॉर द डे, ओके। सो आज हमने क्या देखा है, ड्यूटीज ऑफ बेलर। इसमें हम लोग लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, चलो। बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। सो इसके अलावा, इंडेमनिफाई के अलावा और भी कुछ ड्यूटीज है क्या, चलो देखते हैं क्या ड्यूटीज है। बेलर इज रिस्पॉन्सिबल, फर्स्ट थिंग इज टू इंडेमनिफाई फॉर एनी लॉस। तो यही पॉइंट मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले ड्यूटी है कि अगर आपकी एक्ट की वजह से उस बेचारे बेली को अगर कुछ भी नुकसान हो जाता है, तो बेलर की ड्यूटी बनती है दैट ही इंडेमनिफाइज दैट लॉस टू द बेली। ओके, दैट इज द फर्स्ट। नेक्स्ट इज ड्यूटी ऑफ बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स। तो एक बार आपने यहाँ पे 2000 रुपये उस बेली को पे कर दिए, तो यू गेट अ राइट to take back your goods, right? So it is the duty of bailor to receive, उसकी ड्यूटी है to take back, to receive the goods। तो जहाँ से भी बेली कहेगा कि आप हमारे गोडाउन में आके गुड्स को कलेक्ट करो, तो ये ड्यूटी बनती है बेलर की कि वो गोडाउन में जाए और उस गुड्स को कलेक्ट करे। So it is his duty to receive back the goods when the bailey returns them after the time of bailment has expired or when the purpose is accomplished। तो आपका 4 महीने के बाद आपको अभी गुड्स वापस चाहिए,
तो वो आपकी ड्यूटी है कि आप जाके बेली से उस गुड्स को रिसीव कर लो। ओके, एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप. आफ्टर दैट आई वेलकम ऑल योर कमेंट्स इफ एनी. ओके, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं. X has delivered his car to S. X ने, मिस्टर X ने क्या किया है? मिस्टर X ने उसकी कार को डिलीवर कर दिया है टू मिस्टर S. कितने दिनों के लिए दिया है? वो कहीं बाहर जा रहा था, he was going out of town and so what he did कि 5 दिन के लिए सेफ्टी के लिए, सेफ रखने के लिए उसने वो गाड़ी मिस्टर S को दे दी है. However, he did not take back the car for month. 1 महीना हो गया है, अभी 5 दिन छोड़ो 1 महीना हो गया, 5 दिन छोड़ो 1 महीना हो गया है, उसने गाड़ी वापस नहीं ली है. इन दिस केस एस जो है, ही कैन क्लेम द नेसेसरी एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय हिम फॉर कीपिंग द सेफ कस्टडी ऑफ द गुड्स. अब 5 दिन की बात अलग है, राइट, एंड 1 महीने के लिए अगर आपको किसी की कार आपके घर पे रखनी है तो इससे क्या होगा, आपको उसका गाड़ी का पार्किंग वो सेफ है या नहीं देखना, उसमें मे बी पेट्रोल फिल करना, उसको क्लीन करवाना. सो आपके कुछ मंथली एक्सपेंसेस हो जाते हैं 1000 रुपीज़, राइट. सो आपको सेफ कस्टडी में रखना है, उसका खर्चा हो गया है 1000 रुपीज़. कभी कभार ये भी होता है ना, पे एंड पार्क वाली फैसिलिटी होती है, पे एंड पार्क रेलवे स्टेशन. इफ यू गो टू शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन, बाहर 2 व्हीलर कार्स के लिए पार्किंग फैसिलिटी है, यू कैन पार्क and then you can travel by train. Maybe you come back after 2 days. So 2 दिन के बाद आप जब गाड़ी आपकी वापस लेते हो, आपको 2 दिन का रेंट पे करना पड़ता है. So यहाँ पे हुआ क्या है, X ने बोला तो था 5 दिन, बट एक्चुअल में वो आ जाता है आफ्टर 1 मंथ. So 1 मंथ के लिए जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बेली हैज इनकर्ड, it is the duty of this bailor to pay those extra charges, to pay those extra expenses which the bailee has incurred to him. Okay, so that is the last example for today. So we are stopping here. Okay, हमने so far क्या देखा है, bailment contract क्या होता है, उसके essential elements क्या है, and what are the duties of a bailor. Okay, this is what we have covered so far. So thank you so much everyone. See you all in the next class. Tomorrow again we will be having a demo class at the same time. So you can join back. In tomorrow's class we are going to finish pledge and we are going to see what is the difference between bailment and pledge. Thank you so much everyone. See you all tomorrow.